वेबसाइट्स हैं जो कि आपको आपको पॉलिश करने में हेल्प करती हैं, तो आपको सब कुछ खुद ही करना है, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So this video is going to be very informative, as many of you guys have been asking me that how to start with a career. So don't skip this video because this video is going to be very informative for you all guys. So first of all, if you have not subscribed to my channel, so please do it right now because I am going to upload very informative videos in my coming days. So make sure you have subscribed my channel, and second that you like this video if you find this informative. Start this video with my line manager. He is going to share his experience that how he started with his career life, and he is also the great teacher. His name is Mohammad Azharul Ansari and he is a very best teacher. Many of you will guys recognize him. Assalamualaikum Azhar bhai. Walaikum assalam. Can you give us a little introduction about yourself? Yeah, thank you so much. First of all, thank you very much for inviting me to have my comments on this. Yes, I'm working as managing consultant in Systems Limited since last 2.5 years. Yeah. And altogether, I have more than 2 decades in the of experience in this particularly software testing field. And I have been working with many organizations like Systems Limited, Central Depository Company of Pakistan, Pakistan Stock Exchange, and some prominent software houses. So Nice. this is my little introduction. And Yeah. beside this, I'm associated as a visiting faculty with multiple universities. Nice. So Azhar bhai, this video is all about giving the fresh students answer that how can they start with their career life. So I want you to share your experience and give your answer that how can they start with your, not in Systems Limited, in any firm. Okay, so that's a very you can say a tricky question, especially for the youngsters who are going to start their career, and they face a lot of challenges in order to get calls from different universities. Yeah. Because most of the time they say that we have applied into so many companies but we are not getting any response, not even an interview call. So Yeah. my very first suggestion is to have the resume that should be better composed of, that your resume should reflect what you are doing, what you are achieving, what you want to achieve, and beside that you have to show the recruiter or the interviewer that you have done these extra things for which you are passionate about. For example, अगर जैसे कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड की बात कर लेते हैं, Yes. तो उसमें आप ये देखें कि सिर्फ सेमेस्टर का कोर्स कर लेना काफ़ी नहीं है, ठीक है। वो तो सभी कर रहे होते हैं जब हम जेनरिक अपना BS प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको पॉलिश करने में हेल्प करती हैं। जैसे लाइक आप टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी एक बड़ी अच्छी फेमस वेबसाइट है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा greatlearning.com, इसके अलावा Coursera, ठीक है। Yes. और इस तरह की बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जहाँ आप अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और जिसके बाद आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और आप ये डिटरमिन करने में भी किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं कि वेदर दिस फील्ड इज़ सूटेबल फॉर मी और नॉट। क्योंकि समटाइम्स हम ये देख रहे होते हैं कि लोग हमारे जो सीनियर्स होते हैं हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। मे बी पॉसिबल कि शायद मेरे लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड इतनी ज़्यादा सूटेबल ना हो, तो मुझे सबसे पहले उसको असेस करना है कि क्या मैं ये चीज़ आसानी से कर सकूँगा, मेरे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आई शुड परस्यू इट। अदरवाइज फोर्सफुली हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें आप इतना अच्छा अपना एफर्ट नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा ये सजेशन ये है कि अपना CV आप पहले बेहतर कंपोज करवा लें, ठीक है। और सेकेंडली आप कुछ एडिशनल कोर्सेज करें जो आपके CV पे ये रिफ्लेक्ट करें कि यस आप वाकई इस फील्ड को लेके पैशनेट हैं और आप इस फील्ड को लेके इंटरेस्टेड हैं अपना करियर परस्यू करने के लिए। तो आप कुछ चीज़ें ये करें। इसके अलावा थोड़ी सी परसिस्टेंस और किसी हद तक कमिटेड होना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा इतने कमिटेड नहीं होते, बहुत क्विकली अपने डिसीजंस चेंज कर रहे होते हैं। तो
ये कि आपको थोड़ा सा अपना कमिटमेंट, थोड़ा सा पेशेंस, ये सब चीज़ें भी रिक्वायर्ड है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉलिश करके, जितना ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करके आप किसी के सामने इंटरव्यू में बैठेंगे, उतना ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक करने का ना आपका चांस जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो अजहर भाई ये तो इंटरव्यू तक की बात थी, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे पर्सनल डीएम में आकर के सीवीज दे रहे होते हैं, कहते हैं कि रेफ़र करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई वेबसाइट्स या कोई और तरीका जिससे आप कहते होंगे कि जॉब अप्लाई करें, लाइक नॉट ओनली पुटिंग द सीवीज इनटू डीएम्स एंड आस्किंग देम टू रेफर? तो इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका लिंक्डइन है, क्योंकि लिंक्डइन एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर आप जाके लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नेटवर्किंग को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपके फ़ायदे के लिए है, जितना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसके साथ ये होगा कि जब आपका नेटवर्क ग्रो करेगा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लैंड होना शुरू होंगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको कोई नहीं जानता उस टाइम तक कोई आपके पास जॉब लेके नहीं आता, आपको मतलब प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो मेरा मानना ये है कि आप लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपको लाइक माइंडेड बहुत सारी कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिलेंगी और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जॉब के हवाले से, आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको रिमोट वर्किंग भी ऑफर कर रही होती हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप अपने प्रोफाइल बना लें और वहाँ पर वो आपकी असेसमेंट करने के बाद आपको किसी पोटेंशियल एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर जाके आपको फिर एक चांस मिल जाता है कि आप काम कर सकें। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये फोकस नहीं करना कि हम किसी जगह पे अप्लाई करें, पता चले और वहाँ से सीवी मतलब हमारा जाए, शॉर्टलिस्ट हो या ना हो, हमें खुद से भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होती हैं और खुद से भी उनको अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता और उस एम्प्लॉयर को आपके बारे में नहीं पता। तो एक प्लेटफॉर्म पे आने से ये फ़ायदा हो जाता है कि एक कनेक्शन बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, लोगों ने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया और उनको दे फाउंड देयर ड्रीम जॉब। Nice. So thank you so much Azhar bhai for sharing the meaningful information. Thank you so much for being the part of this video. Thank you so much. So next I have Ashar here and he is basically from I think integration team. Yes, indeed. So now he is going to share his experience that how he get that internship. Okay, first of all, Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ashar Asif and I am an integration intern at Systems Limited. And मुझे इस तरह इंटर्नशिप इस तरह मिली कि लिंक्डइन सबसे मेन चीज़ है। लिंक्डइन में एक टेक्निकल रिक्रूटर बड़ी कंपनीज हायर करती हैं कि आप हमारे लिए टैलेंट ढूंढ के लाएं। आपने टैलेंट एक्विजिशन का टर्म सुना होगा, राइट? बेसिकली वो कंपनी के बेहाफ में पोस्ट करते हैं इंटर्नशिप, क्योंकि बड़ी कंपनी जो होती है अपने मेन पेज पे पैसे पोस्ट नहीं करती है, कैसे जॉब भी नहीं पोस्ट करती है, वो टैलेंट एक्विजिशन वाले वो हायर करते हैं, उनके बेहाफ पे पोस्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने भी यही किया कि मैंने लास्ट 6 मंथ से मैं बहुत सारे टेक्निकल रिक्रूटर्स को लिंक्डइन में मैंने फॉलो किया। टेक्निकल रिक्रूटर हो जाते हैं, HR वाले हो गए, फ्रॉम ऑल कंपनीज, फोलियो, टेम्पर, सिस्टम्स। मैंने स्पेसिफिक बंदे ढूंढे, उनको मैंने फॉलो किया लिंक्डइन में और मैं लिंक्डइन रोज़ देखता था कि ये है कि लिंक्डइन आप अपने यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर में तो आप इस तरह यूज़ करें जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। आप उसको उसका आधा भी स्क्रीन टाइम दे देंगे ना इंस्टाग्राम का, तो आपका बहुत फ़ायदा है। आपकी मोटिवेशन तो जाती ही जाती है, ऊपर से आप वो भी सीखते हो कि आजकल दुनिया में हो क्या रहा है और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसी तरह आई गेस आई गॉट अ लेटर लगी कि मुझे एक पोस्ट मिल गई, इसमें सिस्टम के इंटर्न्स की पोस्ट आई हुई थी कि हमें कुछ इंटर्न्स की नीड है। ठीक, और मैंने उसमें फॉर्म अप्लाई किया, CV वगैरह उसमें फॉर्म में भरना था, तो मैंने उसमें अप्लाई करके मैंने डाल दी। मुझे कुछ देर बाद कॉल आ गई, इंटरव्यू की कॉल है, फिर मैंने इंटरव्यू दिया तो अलहमदिल्ला हो गया मेरा। ओके, तो मतलब आप ये समझते हैं कि DMs में ही सिर्फ CV नहीं भेजनी चाहिए, आपको पोस्ट वगैरह भी देखनी चाहिए? जी, आपको प्लेट में रख के कभी कुछ नहीं मिलेगा ना, आपके कभी दोस्त बताएंगे कि कोई जॉब ओपनिंग अवेलेबल है। आप इसमें भी अच्छे भी दोस्त हैं मेरे, यही होता है कि अगर आपको बताएंगे तो थोड़ा लेट बताएंगे, तो आपको सब कुछ खुद ही करना है। ठीक है, आप ये माइंड बना के बैठ लें कि मैंने खुद ही अर्न करना है, खुद ही मैंने अपने लिए चीज़ें ढूंढने, अपने रास्ते बनाने हैं। तो मैंने यही किया, मैंने किसी पर डिपेंड नहीं किया कि मेरा दोस्त कुछ बोलेगी को बता ही देगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किया कि मैं लिंक्डइन में अपना टाइम स्पेंड करूँगा और मैं एक बाकी 3-4 महीने बाद मैं रिफ्रेश करता रहा और धड़ाधड़ अप्लाई किया। मैंने वहाँ अप्लाई किया जहाँ पे मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मिली। कोई मेरा भाई यही कहता है बेसिकली कि वहाँ पे भी अप्लाई करो जहाँ पे बैचलर डिग्री मांगे। अभी मेरा एक बन गया रहता है बैचलर डिग्री का, तो वहाँ पे अप्लाई करो, धड़ाधड़ अप्लाई करो
कॉल आएगी कहीं ना कहीं से तो आएगी, ठीक है। ओके अशर, आई हैव वन क्वेश्चन Okay. कि जैसे कि आप फ्रेश थे तो जी। आपने अपने सीवी में क्या मतलब एक्सपीरियंस रखा था या क्या रखा था आपने? एक्सपीरियंस तो बेसिकली कंपनी की कंसिडर ज़रूर करती है कि अभी एक्सपीरियंस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में है तो एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक इंटर्नशिप होगी। अगर मैं फाइनल में था, मेरा इससे पहले प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, वो आपके बेसिकली स्किल सेट देख रहे होते हैं, आपका स्किल सेट क्या है, आपको काम आता है कि नहीं है। तो नंबर 1 इज़ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हों, आप प्रोजेक्ट बनाते रहें, आप अपना लिंक्डइन में बहुत एक्टिव रहें, आप खुद पोस्ट करते रहें अपने प्रोजेक्ट्स। आप जितने प्रोडक्ट्स पोस्ट करेंगे उनको डिप्लॉय करेंगे। एक डिप्लॉय दिखाने का तरीका होता है, क्योंकि आप अगर कुछ भी लिख देंगे तो वो उनको वो आपकी स्किल्स कैसे विजुअली कैसे दिखेंगे। जैसे मैं डेवलपमेंट की फील्ड में था, वेब डेवलपमेंट, तो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए, मैंने डिप्लॉय किए। या तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट डाल दिए कि ऐसे ऐसा नज़र आ रहा है, मैंने ऐसा ऐसा किए, या तो आप वीडियो की रिकॉर्डिंग डाल दें लिंक्डइन में। तो इस तरह ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं प्रोडक्ट बनाता गया और मैं अपलोड भी करता गया। तो आई गेस वो उसका बैकग्राउंड चेक भी होता है सिर्फ कंपनी की तरफ से। ओके तो ये हेल्प करता है आपको डेवलप करता है। Okay, thank you so much, Ashar, for sharing your meaningful information. So we have now Maham from V Banking Department. Now she is going to share her experience and how she started with her career. Assalamualaikum. My name is Maham Naeem and I am working as a consultant at Systems Limited. And मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो आई स्टार्टेड एज एन इंटर्नशिप एट अ स्टार्टअप कंपनी। और मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला था एक फ्रेंड के थ्रू। और ज़्यादातर वैकेंसीज आपका सोशल सर्कल ऐसा होना चाहिए कि आपको जो है वो मतलब आपको चाहिए आप सोशल सर्कल में ऐसे कॉन्टैक्ट्स रखो जिनके थ्रू आपको पता चलता रहे। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी एन इंटर्नशिप ऑफर, और उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे अप्लाई करा था। और आपकी सीवी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग स्किल्स जो कि आपको अट्रैक्ट करे और कोशिश करें अपना जो करियर स्टार्ट करें वो ऐसे इंटर्नशिप ही करें, इससे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इसको ज़रा साइलेंट करना, वहाँ से फिर कंटिन्यू कर लेना। इंटर्नशिप के थ्रू आपको अपना करियर स्टार्ट करें वो ज़्यादा सही रहता है, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो प्रैक्टिस कर लें आप पहले, फिर उसके बाद आप उसमें एफिशिएंट हो जाएं। तो मैंने अपना ऐसे ही स्टार्टअप करा था, एक स्टार्टअप कंपनी में स्टार्ट की थी इंटर्नशिप, और मेरी इंटर्नशिप 3 मंथ्स की थी, लेकिन वो जो है उन्होंने 2 मंथ्स करके मुझे परमानेंट कर दिया था, क्योंकि वहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और बहुत अच्छी स्किल्स और वो मेंटोर्स थे जिन्होंने बहुत कम टाइम में अच्छी स्किल्स सिखा दी। तो बस ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहें, लिंक्डइन के थ्रू भी आपको बहुत पता चलता रहता है, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें उसके थ्रू भी आपको पता चलता रहता है, और कोशिश करें जो स्किल्स मार्केट में ज़्यादा है ना उस पर फोकस करें। ओके, सो यू वांट टू से कि जो आपके पास स्टार्टिंग में स्किल थी आप उस पर 100% श्योर थे जो आपने जी मैंने स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट से। उस वक्त जावास्क्रिप्ट ही स्टार्टिंग बहुत डिमांड थी, उसके बाद फिर React.js आई, Vue.js आई, Next.js आई। Okay, thank you so much, Maham, Thank for you. giving the meaningful information. Assalamualaikum. So now I have my dearest friend Muskan from Enabling Services Department. सही बोला ना? Enabling services, yes. Yes, Muskan, share your experience that how did you start with your career? My experience with you have been very great. Not with me, with your career. We are giving information to the freshers. प्रोफेशनल होना है, पर बहुत professional होना है. नहीं बताना सुसु। That's your preferences. तो फिर Okay. एडिटिंग मुश्किल नहीं बनाते, हम जल्दी करते हैं। ओके। Okay. So I joined Systems 3 years back as an MTO. Nice. MTO is like a management trainee program orientation that management trainee officer basically. Yeah. तो उसमें फिर यूनिवर्सिटी से जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी में कैंप लगा था, उसमें सीरीज़ वगैरह दी, उसके बाद फिर कॉल आ गई, मैं फिर ज्वाइन कर दिया। तो बल्क में हम हायर हुए थे, मतलब हमारा कोई अराउंड 100 का था, 3 बैचेस में डिवाइड होकर आए थे। तो मेरे बैच में कोई 25-27 लोग थे, हम 3-4 लड़कियाँ थे उसमें। Okay. सो दैट्स हाउ वी जॉइन सिस्टम्स। ओरिएंटेशन हुई थी हमारी, और इंटरव्यू की बेसिस पे उन्होंने हमें डिपार्टमेंट्स खुद से असाइन कर दिए थे Okay. कि कौन किस में जाएगा। Okay. तो मैंने किया था थोड़ा सा झगड़ा टू गेट इनटू द डिपार्टमेंट दैट आई एम करेंटली।
Nice. So I was initially got into the development, and then I switched to this career, which is basically the business analyst thing. तो झगड़ा इससे रिलेटेड था टू हाँ, झगड़ा अबाउट किसी- स्विचिंग करियर. थोड़ा सा I wanted to get into the technical side, but not very technical. Like I didn't want to get into the development. Although मुझे realize होता है कि वो ज़्यादा skillful काम है ना. Yep. फिर भी मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं करना, डेव नहीं करना, बस कुछ करना है. बस बीए बनना है. हाँ, बस बातें करनी है और रास्ता में आना है, बातें करनी. चले, ये अच्छी बात है. अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन दैट जब आपका इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू, तो आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश थे, आपके पास स्किल्स तो नहीं होती यूनिवर्सिटी में जब आप होते हो, तो आपकी किस तरह की प्रिपरेशन आपने की थी या किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? अच्छा, तो बेसिकली आई वॉज डूइंग अ फ्यू इंटर्नशिप्स. एक सोशल इंटर्नशिप थी, एक मेरी प्रॉपर इंटर्नशिप पेड वाली थी. उसके अलावा आई वॉज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब. मतलब दो मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की थी, एक अपने 7th सेमेस्टर में, एक 8th सेमेस्टर में. तो आई हैड अ प्रीटी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट. तो जब उन्होंने इस तरह पूछा था कि क्यों आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, तो मैंने अपनी उन इंटर्नशिप्स की और उन जॉब्स की बात शुरू कर दी थी कि आई एम करंटली डूइंग दिस एंड आई वांट टू कंटिन्यू दिस एज प्रोफेशनल करियर, और दैट्स हाउ आई वांट टू गो विद. नाइस. सो अच्छा, सीवी में क्या मेंशन होना चाहिए जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, तो आप सीवी में क्या एज एन एक्सपीरियंस डालते हो? आई थिंक सो. एज अ बीए की बात कर रही हूँ, बीए बिजनेस. अच्छा, एज अ बीए वो तो मुझे लगता है कि जब आप फ्रेश होते हो तो आपकी सीवी में आप कोशिश कर रहे होते हो कि सब कुछ डाल दें. मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी को पानी पिला के देने तो आपने डाल दिया. हाँ, कि- exactly. तो आई थिंक कि वो बहुत अजीब सी चीज़ होती है व्हेन यू कैन डू एवरीथिंग बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट योर बेस्ट. Yeah. So the main thing is to focus where you are applying. Like if you are looking for some position जो business analyst की है, तो it's not really a good thing to talk more about the development side या कुछ. भले आप mention करें एक दो projects, लेकिन mainly focus जो होना चाहिए आपकी उन सारी चीज़ों पे होना चाहिए जो उस चीज़ के effective हो जिस lateral position के लिए आप apply कर रहे हैं. तो at that time भी मैंने अपनी 2-3 CVs बनाई हुई थी, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एज अ सप्लाई चेन ऑफिसर थी. तो मेरी एक उस तरह की भी CV थी. Although I was a CS graduate, लेकिन I was able to get that job too. तो make different revisions or versions of your CV, और जिस जगह आपने अप्लाई करना हो वहाँ पे आप उस CV पे मेन फोकस रखें. आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी चीज़ों को बिल्कुल बताएं नहीं. ये अच्छी बात होती है कि आपका काम एक होता है और आपको बाकी 10 कामों का भी पता होता है, बट यू डोंट हैव टू बी बेस्ट एट ऑल. या तो आप फोकस एक चीज़ पे करें और बाकी सबको ऐड ऑन भी करें. Oh, thank you so much, Muskan, for sharing your meaningful information. And she's also a blogger. I would like to mention that मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यकीनन, और यहाँ पे भी आपको पॉपअप करके नजर आएगा. Follow me, guys. Yeah, you can follow her. She make very creative content. I personally like her. ये मैं वीडियो के लिए तो नहीं बोल रही, एक्चुअली बोल रही हूँ. ठीक है. इसने मुझे कहा था कि आप मेरा बोलना, मैं आपको बोलूँगी. भाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, क्या होता है, Bell शेयर, icon. प्रेस द बेल आइकन. Press the bell. कोने पे होता है ना, नीचे होता है, प्रेस द बेल आइकन. जहाँ भी आपको नजर आए ना घंटी बजा दे. बजा दो. अल्लाह हाफिज.